وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. ڈیئر ویور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبح ولایت میں صباح الخیر. آپ کی ہوسٹ اندلیب زہرا نقوی ولایت ٹی وی یو ایس اے کی توسط سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کا ہمارا پروگرام بمناسبت شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مولا کی شہادت کے حوالے سے ہم یہاں پر گفتگو کریں گے. 25 شوال ایک تاریخ کے مطابق جو ہے وہ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ہم امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے جو کہ ہمارے چھٹے امام ہیں ان کی ذات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اس سے پہلے اپنے ریگولر سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ہم پروردگار دو عالم کے اسماء الحسنی میں سے جو ہے وہ ایک اسم مبارک جو ہے وہ پروردگار دو عالم کا یہاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے خواص، اس کے بینیفٹس، اس کے اسم مبارک کا اسم حسنی کا مطلب کیا ہے، اور اس کا ورد ہم کتنی دفعہ کر سکتے ہیں، اور کس کس دن کرنے کی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے. تو اس لیے کہ تاکہ ہماری زبانیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر وقت ذکر خدا کے ساتھ معمور رہیں، اور ہم ہر وقت تسبیح و تحلیل، اور زندگی میں ہم اپنا یہ شعار بنا لیں کہ ہر وقت ہم جو ہے وہ یاد الہی میں مشغول رہیں. ہم جانتے ہیں کہ جس چیز کو بھی ہم بکثرت کرتے ہیں وہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے، اور جو ہماری عادات ہوتی ہیں وہی ہماری سوچ بن جاتی ہے، اور ہماری سوچ کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ ہماری عادتیں جو ہے وہ تشکیل پاتی ہیں. تو جتنا ہم اپنے آپ کو پروردگار دو عالم کے اسماء الحسنی سے، پروردگار دو عالم کے ذکر سے معمور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے گا. اور پھر یہی وہ ذکر ہے کہ جو ہمارے ساتھ جائے گا، یعنی وہ ہمارے اعمال. دیکھیے انسان کے ساتھ جو ہے دنیا میں تو اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، جو کہ دنیا کی زینت قرار دیے گئے ہیں قرآن مجید میں، لیکن جو چیز ہماری اخروی زندگی کہ جو دائمی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس میں یہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جائیں گے. تو یہ ارشاد رب العزت ہے، اور ہم اس کے جتنا بھی شکر ادا کریں اپنے پروردگار دو عالم کا وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اپنی زبانوں پر اس کے اسماء الحسنی کو لائیں، اس کا ورد کریں، اور اپنی حاجات کو جو ہے وہ پروردگار دو عالم کے حضور میں جو ہے وہ بار لائیں. تو بہت ہی خوبصورت، ظاہر ہے کہ اللہ کے تمام نام پیارے ہیں، کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں، اور اس کو انہی ناموں سے پکارو. آج کا جو اسم مبارک ہے وہ اسم جمالی ہے، خدا کی جمالی صفات کا مظہر ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کو جانو اس کی صفات سے. معصوم کا فرمان ہے کہ اللہ کو اس کی صفات سے پہچانو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، لیکن اس کی ذات میں جو ہے وہ کیونکہ وہ انسانی فکر سے، انسانی عقل سے ماروا ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا. اسی لیے اب یہ جو اسم جمالی ہے پروردگار دو عالم کے جمال کا مظہر ہے، اور یہ اس وقت کے مطابق جو ہماری کرنٹ سچویشن جا رہی ہے، کرنٹ حالات چل رہے ہیں، اس کے مطابق یہ بہت ہی خوبصورت اسم ہے کہ جس کا البصیرو، البصیرو سب کچھ دیکھنے والا. اللہ اکبر، وہ ذات، وہ عظیم، وہ اللہ، وہی ہے کہ جس کو ہر بڑائی، ہر تعریف، تمام حمد و ثنا جو ہے وہ اسی کو دیوا دیتی ہے. وہ ذات کہ جو سب کچھ دیکھنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ سے. تو ہم اس کی ذات سے کوئی مطلب وقت جو ہے وہ معین
नहीं कर सकते हैं। ये परवरदिगार दो आलम की ज़ात है कि उसको उसकी सिफ़ात से पहचानो। उसकी सिफ़ात किस तरह कि उसके अस्माए हुस्ना से उसको पहचानो, उसको पुकारो। ये इसमें जमाली के जिसके 302 आदात जो हैं वो बताए गए हैं। इसका विर्द आप 302 टाइम्स भी कर सकते हैं अपनी तमाम मुश्किलात के परेशानियों के हल के लिए। और इसके साथ साथ जो शख्स नमाज जुमा के बाद 100 टाइम्स 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह या बसीरों का विर्द करेगा तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसकी निगाह में रोशनी और उसके दिल में ऐसा नूर पैदा फरमा देगा कि गुनाह करते वक्त वो अल्लाह से डरेगा। अल्लाह अकबर! कितनी जरूरत है इंसान को कि वो हर वक्त याद खुदा में मशगूल रहे ताकि वो मासियत की तरफ ना बढ़े। उसके जब इंसान को इसीलिए उसके जिसके दिल में ये नूर पैदा हो जाएगा, ये कल्ब ईमानी पैदा हो जाएगा, ये रोशनी सुबह परवरदिगार दो आलम अता फरमाएगा कि उसके बाद फिर वो गुनाह के करीब जो है वो जाते हुए डरेगा, वो सोचेगा, वो थिंक करेगा, उसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा। उसके और जाहिर है कि ये अताए परवरदिगारे दो आलम है। और हम जानते हैं कि हर चीज को अचीव करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ हदफ होते हैं, कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं कि जिनको आपको अमाल को अंजाम देना होता है और फिर उसके बाद आप उन अमाल को, उन अहदाफ को जो है वो पा सकते हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या बसीरो अल बसीरो। इसका जिक्र करें हम, इसका विर्द करें हम, इसको अपनी ताकीबात में शामिल करें हम, और इसके जरिए से हम नूरे ईमानी, नूरे बसीरत और रोशनी और दिल में जो है वो मारिफत खुदा परवरदिगार दो आलम जिससे पैदा हो सकती है हमारे अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हम सब इसमें मुबारक से है जो फायदा हासिल कर सकते हैं। और बेशक के जब हम मिलकर दुआ करते हैं कि मासूम का फरमान है कि जो दुआ मिलकर की जाए, इसीलिए हम एक दूसरे को इल्तमा से दुआ बोलते हैं। हम कहते हैं कि मोहताज दुआ है हम एक दूसरे के लिए, और कि हम हर वक्त एक दूसरे को दुआ में याद रखें, और जो दुआ मिल के की जाती है वो परवरदिगार दो आलम उसको कबूल फरमाता है। तो इसीलिए कॉन्ग्रीगेशनल हमारे रिलीजन में नमाज जमात के साथ पढ़ना, दुआ की महाफिल को जो है वो करना, उसका एहतमाम करना, दुआए शब जुमा में दुआए कुमैल है, आप लोग दुआए तवस्सुल पढ़े हैं एवरी वेडनेसडे ट्यूसडे को, इसके साथ दुआए नुदवा है फ्राइडे के दिन में। लेकिन आप किसी भी दिन इसका एहतमाम कर सकते हैं। अगर आप वीकडेज में नहीं कर सकें तो आप इसका किसी भी दिन जो है वो आप इन दुआओं का एहतमाम कर सकते हैं। आप दुआओं को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ सकते हैं। रीजन इज कि मतलब जो हमारा हदफ है वो ये कि दुआओं को अपनी जिंदगी में, जिक्र खुदा को अपनी जिंदगी में हमने इस तरह से शामिल कर लेना है कि वो हमारी जिंदगी का एक लाजमी खासा हो जाए, वो हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा हो जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आइए चलते हैं मौलाए मुत्तकियान साहिब नहजुल बलागा, खतीब मिंबर सनूनी, अमीर अल मोमिनीन, यासूबुद्दीन, कायद अल कुरान मुहज्जिलीन, इमाम अल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में चलते हैं और आपके कलमात किसार नहजुल बलागा में से आज का जो खूबसूरत कॉल है उसको आपकी समातों की नजर करती है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिस तरह से हमने परवरदिगार दो आलम के इसमें मुबारक वाल बसीरों पे जो देखने वाला है, जो हर शय को देखने वाला है, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो इनजस्टिस हो रहा है, जहां जहां पर किसी के हक को गसब किया जा रहा है, जहां जहां पर दायरे के इंसानियत का के साथ कत्लो गारत गरी जारी है, जहां जहां भी जो नाइंसाफी हो रही है, परवरदिगार दो आलम जो है वो देख रहा है और एक दिन उसने हिसाब का मुकर्रर किया है, जजमेंट का मुकर्रर किया है। और इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ताकीद की गई है कि हम कुरान मजीद को पढ़ें ताकि हम पिछली उम्मतों के हालात को देखें। हम देखेंगे पिछली उम्मतों के साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह से अजाब नाजिल हुए थे कि जिन जिन उम्मतों ने अपने जो कौमें थी कि जिन्होंने अपने भेजे हुए रसूलों को, अंबिया को सुना नहीं, लिसन नहीं किया, और फिर उसके बाद जाहिर है कि जो जो उन्होंने जुल्म नारवा रखा, उन्होंने जो इनजस्टिस किए, उन्होंने जो लोगों के हक को गसब किया, उन्होंने जो नाइंसाफियां की, तो उनकी बिना पर, उनके हद से ज्यादा बढ़ जाने और जुल्म की बिना पर उनके ऊपर अजाब नाजिल हुए थे। बहुत खूबसूरत जुमला है मेरे मौला की दुआ का, दुआए कुमैल का, कि जो आपने कुमैल को तालीम फरमाई थी अपने
सहाबी को, अपने कंपेनियन को, कि ज़लम तो नफ्सी, कि हम ही हैं कि जो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करते हैं। ये इंसान ही है, ये हजरत इंसान ही है कि अपने आमाल से हम ज़लम तो नफ्सी का शिकार होते हैं, हम अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करते हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है, परवरदिगार जो आलम जो है उसको देख रहा है, वो साहिब बसीरत है, वो अलीम है, वो कबीर है, वो हर शय का जानने वाला है। पत्ता हरकत नहीं करता, लेकिन वो परवरदिगार जो आलम जो है, अल्लाह अकबर, उसकी हम्दो सना की कोई हद नहीं है कि वो जानता है। जहाँ दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तीसरा परवरदिगार जो आलम हर जगह हर शय में मौजूद है। ये उसका अक्स है जो पूरी कायनात में अपने जमाल को फैलाए हुए है। सिर्फ इंसान को वो साहिब बसीरत होना चाहिए, वो मारिफत होनी चाहिए। इंशाल्लाह जब हम इनका जिक्र भी करेंगे, हमारे अंदर वो मारिफत भी आ जाएगी। मौला का कॉल जो है वो भी इसी तरह से, अगर हम करंट सिचुएशन को भी सामने रखें तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौला का जो है वो कॉल जो है वो आज के हालात के मुताबिक भी हम उसको ले सकते हैं। और हर रोजाना जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में, अपनी लाइफ को जब हम देखते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के उतार और चढ़ाव को देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंदगी जो है वो एक इम्तिहान है, परवरदिगार दो आलम की तरफ से एक आजमाइश है। और इसी तरह से कि कौन है कि वो जो अपने परवरदिगार दो आलम के अच्छे आमाल को अंजाम दे। इसीलिए परवरदिगार दो आलम ने ये जिंदगी जैसी नेमत, मौत और हयात को खल्क है ताकि आजमा सके कि कौन अहसनल आमाल को अंजाम देता है। तो यहाँ पर मौला मुत्तकियान कॉल नंबर 217 में वकाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिसमें मौला फरमाते कि हालात के पलटों ही में मर्दों के जौहर खुलते हैं। अल्लाह अकबर। सारे यहाँ पे वर्ड जो है वो मर्दों का किया गया है, लेकिन इसमें हम तमाम इंसानियत को शामिल कर सकते हैं कि अहवाल जो हैं, जवाहिर जो हैं इंसान के अंदर, जो कमालात हैं इंसान के अंदर, जो हमारे अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम के साथ खालिक कायनात ने हमें खल्क फरमाया है, उसको, उन जवाहरात को, उन कमालात को, उन क्वालिटीज को किस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उन क्वालिटीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खुल के सामने आ सकती हैं वो हालात के बदलने। दुनिया के हालात हमारे सामने हैं। 2020 में जिस तरह से 2020 शुरू हुआ, कासिम सुलेमानी और वो जो मोहम्मद मेहदी, उनकी शहादत के साथ, और इसके साथ साथ वो प्लेन का क्रैश होना, और फिर उसके साथ साथ हम जानते हैं जो ग्लोबल पैंडेमिक जो है, उसके साथ फिर क्वारंटीन के हालात आए, और उसके साथ फिर जाहिर है कि जहां जहां पर भी दुनिया में नाइंसाफी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इस वक्त हम यूएसए के हालात देख सकते हैं कि एक जो मूवमेंट शुरू हो गई है, जाहिर है कि जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट भी हैं, जिसमें राइटिंग भी है, जिसमें लूटिंग भी है। हम लूटिंग की को कंडेम करते हैं, हम किसी भी तरह से जुल्म की हिमायत नहीं करते हैं, किसी भी सूरत में हो, किसी भी शक्ल सूरत में हो, और हम हक के साथ देने वाले हैं, हम मजलूम के साथ खड़े होने वाले हैं, क्योंकि हमने ये करबला से सीखा। तो अब इन हालात को हम किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से इसको जो है वो हम इस वक्त को इस यूटिलाइज करते हुए, इस मौके को यूटिलाइज करते हुए, जो वो हमारे लिए एक टेस्ट है कि उसी में हमारे जो अंदर हिडन जवाहरात हैं, जो कमालात हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको इन्हेंस करने का हमें मौका मिला, टाइम मिला। और इमाम फरमाते हैं कि यही हालात के पलटों में ही मर्दों के जौहर जो हैं, कमालात जो हैं, वो खुलकर सामने आते हैं। सुभान अल्लाह। मौला मुत्तकियान, रुश्द व हिदायत का पैकर आपकी जात है। और कितने आपने खूबसूरत एक जुमले में इमाम अलैहिस्सलाम ने एक समंदर को, हिकमत को, कायनात को समेट के रख दिया मेरे मौला ने, खुदा मौला की जात पर। और जाहिर है कि आप बाबे मदीनातुल इल्म है, तो ये जाहिर है कि आप ही का, आप ही की जात व जात है कि अगर हम शहर इल्म में दाखिल होना चाहते हैं, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुल्ले इल्म है, आपकी जात जो वही इलाही की तर्जुमान जात है, अगर हम आपकी जात तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें बाबे मदीनातुल इल्म से, यानी कि हिकमत से,
इल्म और हिकमत के इस दरवाजे से मौला मुत्तकियान साहिब नहजुल बलागा के कलमात किसार को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। आपके जुमलात को, आपके कोट्स को, आपके सेइंग्स को जो है वो कॉम्प्रीहेंड करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, दुनिया को बताना होगा। तो इस वक्त को हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेसन यही है एट द एंड ऑफ द डिस्कशन इसमें कि हम इस मौके को किस तरह से यूज करें। क्वारंटीन में हम हमारे पास जो था वो हमें एक मौका मिला कि हमने जहाँ पे अपने घरों को इमाम बारगाह और मस्जिद बना लिया, हमने जिस तरह से रमजान अल मुबारक को जो है वो सेलिब्रेट किया, कमेमोरेट किया, हमने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए शहादत की मजलिसें भी की, अमाल भी किए मिलकर, सब कुछ किया। तो इसी तरह से मतलब इमाम अलैहिस्सलाम का ये कॉल जो है इसको हम ले सकते हैं। और ये अब भी जो हमारे पास जो है, अगर हम प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हैं, अगर हम माली मदद कर सकते हैं तो हम वो कर सकते हैं, अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो हम वो कर सकते हैं। जिस तरह से भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस वक्त इस मूवमेंट की तरफ, और ये हमें इस वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए और हक के साथ खड़े होना चाहिए, हक के साथ। और यही देखिए हमारे आइमा अलैहिस्सलाम की तालीमात में से हमें जो है वो लेसन मिलते हैं। चूंकि जाहिर है कि वैसे तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत जो है वो 25 ऑफ शवाल को होती है, लेकिन हमने कहा कि हम डिस्कशन को आज से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह अजीज। और इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत, आपकी हयात तैयबा, आपके दायरे के आपकी बहुत से सेइंग्स हैं। तो अगले प्रोग्राम में हम इमाम अलैहिस्सलाम के सेइंग्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज थोड़ा सा हम इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से बात करते हैं, आपकी सीरत तैयबा, आपकी हयात तैयबा, आपका जो दौर इमामत था, आपकी पैदाइश, उसके हवाले से। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे 6 इमाम हैं। आपकी तारीख विलादत जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इसलिए कि आपकी और सरकार खत्म मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख विलादत यानी कि 17 ऑफ रबीउल अव्वल। आप जो है वो 48 या आप जो है वो 83rd ईयर आफ्टर हिजरा में मदीना में आपकी विलादत होती है। और जाहिर है कि उसमें फिर हम देखते हैं कि आपके वालिद बुजुर्गवार जो हैं वो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातो वस्सलाम हैं, और आपके जो दादा हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम हैं। तो यहाँ पे 2 शख्सियात के जो वाक़या करबला की ऐनी शाहिद हैं, कि जिन्होंने वाक़या करबला को विटनेस किया है फर्स्ट हैंड। तो जो वाक़या करबला के हम कह सकते हैं कि वाक़या करबला जो अगर उसको एक मूवमेंट के तौर पे लिया जाए तो वो मूवमेंट जो है उसकी उसकी जाहिर है उसकी बुनियादों को, उसके पूरी मूवमेंट को कामयाब करने में जिस शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ है वो हमारे 4th इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कि आपके कूफा, आपके करबला से कूफा और फिर कूफा से शाम तक के जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं, और फिर बाद अज करबला जो आपकी पूरी एक लाइफ ऑफ जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें आपने करबला के वाक़यात को जिंदा और जावेद किया अपने गिरिए के जरिए से, अपनी दुआओं के जरिए से, और वो सहीफा कामिला के जरिए से, कि जिसको इंजील अहले बैत कहा जाता है, जिसे ज़बूर आले मोहम्मद कहा जाता है। तो आप सोचिए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमारे मौला जो है वो अपने दादा के ज़ेरे साया रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब इमाम अलैहिस्सलाम जो थे वो अभी आपका यानी कि हम जानते हैं कि इमाम इमाम जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो इमाम मासूम है आप। और फिर लेकिन यह है कि आपका जो बचपन है, जिसको हम अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो जो एज जो है वो बचपन का हिस्सा कहलाता है, वो आपने अपने दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया गुजारा है। आपकी तरबियत हुई, आप परवान चढ़े और आपने
उन हालात को फर्स्ट हैंड, जिसे कहते हैं ना कि वो मजलिसें जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पढ़ी होंगी, वो मसाइब जो मेरे चौथे इमाम ने बयान फरमाए होंगे, बाद शहादत करबला, बाद शहादत उज़्मा, जो और बाद करबला और शाम, और आपने जो शाम के वाक़यात बताए होंगे, जो शाम की शहादत मसाइब को बयान किया होगा, और वो हमारे सिक्स इमाम अलैहिस्सलाम ने यानी कि ज़ाते खुद अपने दादा से जो है वो फर्स्ट हैंड सुने हैं। तो उस मजलिस की क्या बात होगी, उस शहादत की क्या बात होगी। इसलिए ही तो वक्त के हम मुंतजिर हैं कि जब हमारे वक्त के इमाम इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजह शरीफ जो है उनका ज़हूर पुरनूर होगा, और जब आप मुंतकिम खून हुसैन, मुंतकिम करबला आएंगे, और फिर आप उन मसाइब को बयान करेंगे। इसलिए कि रिवायात में है कि हर रोज इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजह शरीफ को करबला का जो वाक़या है पूरा उसको दिखाया जाता है, और इसीलिए इमाम जो है वो उनके ज़ाहिर है कि उनका वो जज्बा और उनके दिल में वो इंतकाम, कुव्वत इंतकाम जो है वो परवरदिगार दो आलम के हुक्म से तो जब इमाम अलैहिस्सलाम आके उन मसाइब को बयान करेंगे तो उस मजलिस की जो है वो कुछ और ही ज़ाहिर है कि रिफ़त होगी, उन मसाइब का, उन बयान का कुछ और ही इफेक्ट होगा लोगों के दिलों के ऊपर, हमारे दिलों के ऊपर। परवरदिगार दो आलम हम सबको ये मौका मरहमत फरमाए कि हम भी अपने वक्त के इमाम से मसाइब करबला जो है वो सुने। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है कि आप मदीना में पैदा होते हैं, और फिर आपकी जो एज जो है वो 65 ईयर्स एज आपकी बताई जाती है, और तमाम ज़ाहिर है कि मोस्टली आप जो है वो मदीना में ही रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा आप मदीना के करबो जवार में आपने वक्त गुजारा। आपका जो इमामत का जो बताया जाता है दौरे इमामत, वो बताया जाता है 34 ईयर्स 34 ईयर्स आपका दौरे इमामत बताया जाता है। और फिर इसमें बहुत से वाक़यात जो हैं वो ज़ाहिर है कि इवॉल्व होते हैं, बहुत से इस तरह के दौर जो अदवार जो हैं, और जो कंटेम्परेरीज बताए गए हैं वो आपके वो अब्बासी खलीफा जो थे, और बनु उमैया का एंड हो रहा था वहाँ पर, और बनु अब्बास जो हैं उनकी हुकूमत शुरू हो चुकी हुई थी, और उस लिहाज से इमाम अलैहिस्सलाम का ये जो 34 ईयर्स ऑफ दौरे इमामत है, वो एक हम उसको इस लिहाज से एक अपॉर्चुनिस्टिक दौर कह सकते हैं कि आपको दूसरे आइमा की निस्बत जो है वो बहुत मौका मिला कि आपने उस काम को, इमामत के उन अहदाफ को कंटिन्यू रखा कि जो आपके आबा व अजदाद ने ज़ाहिर है कि वो शुरू किया था, और आपने इस लिहाज से वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का बुनियाद, जो फाउंडेशन, कि जो बाक़िरुल उलूम आपके बाबा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने रखी थी, आपने उसको किस तरह से कंटिन्यू किया, उसको इन्हेंस किया। इसीलिए तारीख में बताया जाता है कि मतलब आपके एक एक वक्त में कितने जो थे वो स्टूडेंट्स जो थे वहाँ पर जो थे वो रहे हैं। तो और इसीलिए आपकी जो तारीख शहादत बताई जाती है वो 25 शवाल जो है 25 शवाल और 148 ईयर ऑफ हिजरा बताया जाता है, आफ्टर हिजरा। और इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो आपके दौरे इमामत जो है वो 114 ईयर आफ्टर हिजरा में शुरू होता है, और फिर 148 ईयर आफ्टर हिजरा तक वो जो है वो चलता है। तो ये 34 ईयर्स जो है इमाम अलैहिस्सलाम के दौरे इमामत में आते हैं, जिसमें कि जिस वक्त बताया जाता है कि आप सिर्फ आपकी उम्र मुबारक जो थी वो 11 साल की थी कि जब आपने कदम रखा है उस यूनिवर्सिटी में, उस मदरसे में, उस क्लासरूम में कि जिसको आपके बाबा ने तश्कील फरमाया था। और फिर ये कि आप अपने बाबा के साथ जाया करते थे वहाँ पर, और बहुत ये नहीं कि आप जाकर दूसरे स्टूडेंट्स की तरह वहाँ पर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आप वहाँ से लर्न करते थे, बल्कि आप बहुत से वेरियस टॉपिक्स के ऊपर स्कॉलरली डिस्कशन किया करते थे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। तो हम जानते हैं कि ये वो हमारे इमाम हैं कि जितने भी दूसरे फ़िक़ा शुरू हुए हैं, अगर आप हनफी फ़िक़े को ले लें, अगर आप मालिकी फ़िक़े को ले लें, हनफिया फ़िक़े को ले लें, तो ये सब के सब फ़िक़ा जो हैं
जो ज़ाहिर है कि बरादरान अहले सुन्नत के हैं, ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो इन्होंने जाके इल्म हासिल किया इमाम की बारगाह से, और फिर जाके अपने अपने फ़िक़्ह जो थे वो इन्होंने ज़ाहिर है कि इनके शुरू हुए, और फिर उन्होंने अपनी जो भी तहक़ीक़ात थी जाके बताई, और लोगों को फिर ज़ाहिर है कि लोग उनके फॉलोअर हुए इस तरह से। तो इमाम अलैहिस्सलाम के इल्म का आप अंदाज़ा लगाएं, ज़ाहिर है कि आप इल्म लदुन्नी के वारिस हैं, ठीक है ना। हम शिया हैं, हमारा ये ईमान है कि आप मासूम इमाम हैं और आप इल्म लदुन्नी के वारिस हैं, इल्म इमामत के वारिस हैं आप, और आप मासूम हैं। तो लेकिन अगर आप इस दुनियावी लिहाज से, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगानी के ऊपर रिसर्च करके बहुत खूबसूरत बुक जो है वो लिखी गई है, सुपरमैन ऑफ इस्लाम, और उसमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बताया गया है। तो यहाँ पर आप जो थे वहाँ पर डिस्कशन किया करते थे, और उस डिस्कशन में जो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं उसमें एस्ट्रोनॉमी बताई गई है, उसमें फिक्ह बताई गई है, उसमें जूरिस्प्रूडेंस बताई गई है, उसमें इस तरह से साइंटिफिक जो थे केमिस्ट्री बताई गई है, उसमें फिजिक्स बताई गई है, उसमें मैथमेटिक्स बताई गई। मतलब ये सब्जेक्ट्स जो थे वहाँ पर के जो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जो थे वो वहाँ पर डिस्कस हुआ करते थे, डिस्कशन हुआ करती थी। और इसी तरह से पूरी आपकी अगर जिंदगानी को देखा जाए कि जिस तरह से मतलब वहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम की अपब्रिंगिंग हुई है, तो उसको हम देख सकते हैं कि बहुत ही स्कॉलरली माहौल और बहुत ही एजुकेशन बाद आज करबला है ये सब कुछ, ठीक है ना। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पॉइंट टू बी टेकन है कि ये तमाम वाकयात, अभी वाकया करबला यानी कि बहुत ही रिसेंटली हुआ था। जब आप ज़ाहिर है कि हम जानते हैं कि 61 ईयर आफ्टर हिजरा में जो है वो शहादत उज़्मा हुई है, वाक़या करबला पेश आया है, जो भी मदीना में हालात शुरू होते हैं वो 60th हिजरा में होते हैं, और फिर 61 हिजरा आफ्टर हिजरा में ये तमाम वाक़या करबला, कूफा से शाम, शाम से फिर वापस करबला, और फिर मदीना आना, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का अपनी दुआओं और अपने गिरिए के ज़रिए से इस पैगाम करबला को जिंदा और जावेद रखना, और उस वक्त के जब कोई शिया रह नहीं गए थे, लेकिन फिर वहां से एक मूवमेंट का शुरू होना, और फिर वो तमाम वाकयात जो है अनफोल्ड होते हैं। तो आपकी विलादत जो है वो 83 ईयर आफ्टर हिजरा में, अभी ये रिसेंटली ही ये इवेंट हुआ था। और फिर आपने जहाँ अपने दादा से भी तमाम वाकयात को सुना, अपने बाबा से भी, क्योंकि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम भी आपकी जो थी वो आपकी एज बताई जाती है 5-6 ईयर्स की एज आपकी थी, 6-7 ईयर की एज थी वाकया करबला के दौरान। और ये तमाम वाकयात के बाद भी आपने किस तरह से दीन के अहकामात को और तालीमात को किस तरह से जो था वो दुनिया के कोने कोने में फैलाया। वाकयात जो अगर हम देखें, हाँ बेशक इमाम अलैहिस्सलाम को बहुत मौका मिला बनु अब्बास और बनु उमैया की जो भी आपस की कॉन्फ्लिक्ट थे उनकी वजह से, और जो भी उन लोगों के हुकूमत के थे तमाम मामलात, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही सख्त दौर था। और इसका अंदाजा जो है वो हम कुछ वाकयात के जरिए से जो है वो लगा सकते हैं कि उस वक्त जो कंटेम्प्रेरी मंसूर दीवान की बताया जाता है कि जिसने ज़ाहिर है कि ने की जहर देने की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत वाकया होती है, तो क्या उसका रवैया था इमाम के साथ, और उस वक्त के जो शिया थे उनका भी उस वक्त क्या मतलब हालात थे और क्या वाकयात थे कि फिर दोबारा हमने वो मूवमेंट नहीं देखी कि जो वाकया करबला में हमने देखा कि मतलब जो कुछ हुआ वो हमने बाद में क्यों नहीं देखा, और फिर भी किसी इमाम ने कयाम क्यों नहीं फरमाया। तो इसी चीज से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने मुश्किल थे, कितने सख्त थे। तो कुछ वाकयात हैं यहाँ पर कि जो मैं ज़ाहिर है कि आपकी समातों की जो है वो नज़र करूंगी, और इंशाल्लाह फिर हम अगले वीकेंड पर भी इस डिस्कशन को जो है वो हम अपने जारी और सारी रखेंगे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगानी मुबारक के हवाले से। तो यही के यहाँ पर जो था कि आपने हकीकत में इस्लाम को जालिम हाकिमों के हिजाब से बेनिकाब किया था, मतलब ये आपकी स्ट्रेटजी थी उस वक्त की। और मंसूर दीवान की जो अब्बासी खानदान का दूसरा सरकश खलीफा था,
और ये जो है वो 136 ईयर आफ्टर हिजरा में खिलाफत की मनसब पर बैठता है। हम जानते हैं कि देखिए, चाहे वो बनु उमैया हो, चाहे वो बनु अब्बास हो, ये तमाम के तमाम जालिमीन में से हैं, ये तमाम के तमाम शजरा खबीसा में से हैं, और इनका सिर्फ और सिर्फ हदफ जो था वो दुनियावी हुकूमत थी, सिर्फ दुनिया की हुकूमत की लालच थी इनको। और इनके अंदर वही जेलसी, वही बोझ, वो नफरत जो थी वो इस कदर भरी हुई थी कि इनसे जो था वो बर्दाश्त नहीं था कि ये किस तरह से इमाम दायरा के अहले बैत अलैहिस्सलाम को और बनु हाशिम को इस तरह से दुनिया के ऊपर जो कि मनसब इलाही जो उनको अता हुआ था परवरदिगार दो आलम की तरफ से, उसको देखते। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस बोझ और जेलसी का नतीजा था, तो जो शुरू से बनु उमैया में चली आ रही थी, और बनु अब्बास में भी ये जो था वो यही था, सिर्फ कि दुनियावी हुकूमत। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उनकी इस हुकूमत की जो भी और इनके जुल्म को जो था वो बेहिजाब किया था, बेनिकाब किया था। जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे थर्ड इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद को बेनिकाब किया था, उसके जुल्म को बेनिकाब किया था, ठीक है ना। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने मुआविया को बेनिकाब किया था। ये देखना तो ज़ाहिर है हमारा काम है ना, देखने वालों का काम है कि जो देख रहे हैं सब कि वो हालात को किस तरह से एनालाइज करेंगे और हक और बातिल में किस तरह से तमीज करेंगे। तो लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने, और फिर यही वजह थी कि जिसकी बिना पर बेशक हालांकि आपने कभी किसी अब्बासी उसके मंसूर की हुकूमत में, कभी उसकी खिलाफत में दखल अंदाजी नहीं की थी, लेकिन हमको इस तरह के बेशतर वाकयात मिलते हैं कि जिसमें मंसूर लअनतुल्लाह अलैह कि जो बार बार इमाम अलैहिस्सलाम को जहमत देता है, कि इमाम को बुलाता है अपने दरबार में और फिर दायरा के इमाम के साथ सख्त रवैया इख्तियार करता है। तो इसी तरह का एक वाकया जो है वो बताया जाता है कि एक दिन मंसूर ने अपने वजीर रबी को कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए, और रबी ने मंसूर जो था मंसूर के हुक्म की तामील करते हुए इमाम अलैहिस्सलाम को हाजिर किया बहुत सख्ती से। और ये इसी तरह से कि हजरत यानी कि उसका इरादा यही था कि इमाम अलैहिस्सलाम को, उनका इरादा ज़ाहिर यही था कि इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए, और ताकि, क्योंकि उनको डर था, जब आपने किसी की कोई चीज छीनी होती है ना, तो आपको डर होता है कि ये कहीं हमसे वापस ना लेने आके। वो जानते थे कि ये हुकूमत जो है, ये इमामत जो है, ये खिलाफत जो है, ये असल में किसकी है। इसीलिए उनको हर वक्त डर होता था कि कहीं हमसे हुकूमत ना छीन लें, कहीं हमारे से, हमारा तो लाइवलीहुड जो है उनको दीन से, खुदा से, रसूल से, शरीयत से, इस्लाम से कोई भी उनको इससे गर्ज नहीं था। उनके गर्ज जो था वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की हुकूमत थी, दुनिया की लालच थी, पैसा था, शाहो वो शहाना, और वही जो होते हैं मतलब दायरे के इस तरह की चीजें थी। तो उनके अंदर इस्लाम का किसी किस्म का भी कोई, जिसे कह सकते हैं आप कि वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि उनको इस्लाम के लिए कोई काम करना है या दीन के लिए कोई काम करना है, या अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात की जो है वो तालीमात की तरफ जो है वो लोगों को लेकर आना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत। और फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि आप मेरी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, इश्काल करते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने भी तुझे यह खबर दी है ये झूठ कहा है, झूठ बोला है। तो उस वक्त वो जो उसका वजीर है रबी, वो कहता है कि जिस वक्त इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो थे वो दाखिल हो रहे थे मंसूर के दरबार में, तो आपके लबे मुबारक जो थे वो जुम्बिश फरमा रहे थे, लबे इमामत जो थे वो जुम्बिश फरमा रहे थे। और कहते हैं कि हजरत के लब हिल रहे थे, और जिस वक्त मंसूर के पास बैठे इस वक्त भी हजरत के लबे मुबारक जो थे वो जुम्बिश फरमा रहे थे, हिल रहे थे। तो कहते हैं कि बाद में जब इमाम अलैहिस्सलाम, और मंसूर उस वक्त बहुत गुस्से में था, और जाहिर है कि उसका इरादा यही था कि वो इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दे। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं वहां पर, मंसूर का गुस्सा जो है वो जाता रहा। और जब इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप उस वक्त किस चीज का जो है वो थे, उस वक्त ये बताया गया कि उस वक्त इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने जद्द अमजद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीम करदा जो दुआ थी, कि जिसका तर्जुमा ये है कि ए दुश्वारी के वक्त ताकत देने वाले, ए मेरी पनाह के जिस वक्त मैं गमगीन हो जाऊं, मेरी हिफाजत फरमा इस आन के साथ कि जो
नहीं सोती है, मुझे रुकन के साये में करार दे कि जो उस्तवार और मुस्तकीम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हालात और वो वाकयात, जाहिर है कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूर का ये रवैया था, तो आप सोचिए फिर कि जो उस वक्त के शिया थे, जो मौला के शिया थे, उनके साथ उस वक्त क्या वाकयात थे और क्या हालात होंगे। यही बताया जाता है कि एक शिया थे उस वक्त के जिनके साथ एक ये मसला दरपेश आया कि वहां पर एक शियों में से एक शख्स ने अपनी बीवी को एक ही मजलिस में यानी एक ही सिटिंग में 3 तलाकें दे दी। हम जानते हैं कि हमारे में इस तरह से नहीं है कि एक वक्त में आप 3 दफा तलाक दे दें, बल्कि पहली तलाक होती है, दूसरी होती है, तीसरी, फिर इसमें उसकी पूरी पूरी कंडीशन है। जाहिर है कि ये पूरा एक फिकी मसला है और पूरा इसका एक अलग से चैप्टर है। अब वहां पर जब उस शख्स ने 3 तलाकें दे दी और फिर जाहिर है कि उसके बाद जब उसने रजू करना चाहा अपनी वाइफ की तरफ और शिया उलमा ने कहा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे में इस तरह से नहीं होता है कि एक ही सिटिंग में आप 3 तलाकें दे दें और उससे तलाक जो है वो वाकया नहीं होती है। लेकिन उस औरत ने कहा कि जब तक मैं इमाम में जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इसका जवाब नहीं सुन लूंगी तो उस वक्त मेरा दिल जो है वो मुतमईन नहीं होगा। ज़ाहिर है कि जब इमाम मौजूद हो तो फिर इंसान का दिल चाहता है कि वो अपने इमाम से ही जो है वो अपने मसले का हल पूछे। इसीलिए बहुत प्यारी बात लगती है आयतुल्लाह तकिय बहजत की, और इसी तरह दूसरे उलमाए कराम ने भी, मुज्तहिदीन ने और काबिर जो भी जितने भी हमारे मुज्तहिद हैं वो यही कहते हैं। आयतुल्लाह मिलानी है, इसी तरह वहीद खुरासानी है, इसी तरह से जवाद अमली हैं, और कि अपने वक्त के इमाम से हर वक्त गुफ्तगू करें। आपके जितने भी मसाइल हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, अपने वक्त के इमाम से बात करें, बैठें, कोशिश तन्हाई में बैठे वक्त निकालें कि निकालते हैं, बैठ के अपने इमाम से गुफ्तगू करें और कम अज कम जुम्मा मुबारक तो जो हमारे वक्त के इमाम से मंसूब है दिन, कि हम उस दिन बैठ के कुछ देर गोशा तन्हाई में अपने वक्त के इमाम के साथ बात करें, वक्त को मुख्तस करें, डेडिकेट करें कुछ वक्त अपने दिन में हिस्सा, चाहे हम उसमें तस्वीर पढ़कर, चाहे हम उसमें वैसे ही बैठ के। हम इमाम हर ज़ुबान को समझते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी दुआए नुतबा पढ़ें, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ाते आली यासीन पढ़ें, उसके लिए ज़रूरी नहीं ही लैंग्वेज में अपने मौला से बात कर सकते हैं। और वक्त को निकालिए अपने इमाम से, अपनी परेशानियों को, अपने दुख दर्द को, दुनिया के हालात को, जो भी आपके जहन में और अगर परवरदिगार दो आलम का लुत्फ करम है आपके ऊपर तो आप उसका शुक्र अदा करें, तो अपने इमाम को बताएं तो मौला हम आपको मिस करते हैं, मौला हम आपको याद फरमाते हैं, मौला हम हर वक्त आपकी कमी दाए रखें, हम हमारी गुनाहगार आंखें हैं, हम आपको देख नहीं सकते हैं, और ये कमी हम सारी चीजों के ऊपर जो है हमारे लिए हावी है। बेशक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परवरदिगार दो आलम की अता की नेमतें हम उसकी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारे वक्त के इमाम हमारी आंखों से निहा है, ओझल है, और ये हमारे लिए बहुत गरां है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा दुश्वार है कि हम अपने वक्त इमाम के पास मतलब इन फेस टू फेस जाकर कुछ मालूम नहीं कर सकते। बहरहाल अपने उस वाकये की तरफ आते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि उस औरत को जब उसके शौहर ने 3 तलाकें दी और उलमाए ने कहा कि नहीं, शियों में ऐसे नहीं होता है, तो उसने कहा कि जब तक मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इसका जवाब नहीं सुन लूंगी मैं मुतमईन नहीं होंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उस दौरान उन हालात में सख्ती कितनी थी उस वक्त के शियों के लिए, अपने वक्त के इमाम से जाकर कोई मसला पूछना, कोई सवाल करना, और हमें कितना आसान तरीका बता दिया गया कि हम कहीं भी बैठ जाएं अपने घर में, किसी भी वक्त गोशा तन्हाई में बैठकर हम अपने इमाम से गुफ्तगू करें। हम वी कैन टॉक टू हिम इन एनी लैंग्वेज, वी कैन शेयर विद हिम, वी कैन आउट पोर आवर हार्ट इन फ्रंट ऑफ आवर इमाम, और इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने हम नमाज शब आकर पढ़े। तो बहरहाल वो शख्स जो है वो कहता है कि ठीक है कि मैं जो हूँ वो जाता हूँ किसी तरह से, और यही वो दौर है कि वो सफाक हुकूमत थी अब्बासियों की और बहुत मुश्किल हालात थे, और फिर उसमें ये अब्बासियों का पहला सरकश खलीफा जो था ये उसके दौर का वाकया है। और उस वक्त इमाम जो थे वो हेरा में रहते थे कि जो नजफ और कुफा के दरमियान जो है वो
इलाका बताया जाता है। अब उस औरत का शौहर जो है वो हेरा चला जाता है, और अब वो सोच रहा है कि किस तरह से, जाहिर है कि वो हालात नहीं थे कि वो सीधा जाए और जाके इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का हालात, कोई पता नहीं था कि यहाँ पे कौन से अब्बासियों के जो हैं वो एजेंट्स बैठे हुए हैं। ये सिर्फ आज ही एजेंट्स नहीं है, हर जगह जो मतलब मुखबरी करने वाले लोग जो हैं, ये CIA और ये इस तरह के सारे, ये आईएसआईएस, ये जितने जितने अलकायदा वगैरह, ये सब ये आज की नहीं है, उस जमाने से चला आ रहा है। ये रहमान और शैतान की जंग जो है ये अजल से है और अब तक रहेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वो शख्स आता है और वो अब सोच रहा है कि वो उस हेरा में आ गया है, मतलब किस तरह से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक रसाई हासिल करे और अपने सवाल को लेके जाए मौला की खिदमत में, और फिर वहां पर उस जवाब को लेकर वापिस आए। तो वो देखता है कि वहां पर एक शख्स जो है वो खियार जो है, जिनको हम उर्दू में खीरे कहते हैं और इंग्लिश में क्यूकम्बर कहते हैं, वो सब्जी बेचने वाला जो है वो उस मोहल्ले में सब्जी बेच रहा है। तो वो भी सब्जी बेचने वाला था। तो अब ये उसके पास जाता है, उससे कुछ सब्जी खरीदता है, खीरे खरीदता है, क्यूकम्बर, और फिर उससे उसका लिबास जो है वो रियायतन लेता है। वो शख्स इमाम का चाहने वाला था, तो उससे लेता है, और फिर जाहिर है कि इस तरह से भेस बदल कर वो उस मोहल्ले की तरफ जाता है कि जिसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो थे वो मौला रिहाइश पजीर थे, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम रहते थे। देखिए कितना मुश्किल था उस वक्त इमाम से जाकर एक मसले का सवाल पूछना। और अब फिर वो वहां जाता है, और फिर जाहिर है कि इमाम तो हालात से वाकिफ है, इमाम तो हमारे दिलों से वाकिफ है, और इमाम जिस तरह के हमारे वक्त के इमाम भी कहते हैं कि आप हमारी निगाह आपके ऊपर है और हम आपके तमाम हालात से बाखबर हैं। तो इसीलिए जाहिर है कि हमें किसी भी हालत में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हालात जो हैं वो हमारे मौला जानते हैं, वो हमारे सरपरस्त हैं, वो हमारे वारिस हैं। हम लावारिस नहीं है, हमारे इमाम मौजूद है, हमारे ऊपर हुज्जत खुदा का साया है। और तमाम जाहिर है कि ये परेशानियां जो हैं ये बिल्कुल वक्ती होती हैं। तो ये जो हालात चल रहे हैं, जाहिर है कि इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे इमाम हमारे सर पर हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज। तो वो जाता है शख्स, और इस तरह से बहाने से वो इमाम के घर के करीब आ जाता है, और वहां पर फिर एक, जाहिर है इमाम आपके हालात से बाखबर है, एक बच्चा आता है, वो इमाम का पैगाम लेकर आता है, और उस खीरे बेचने वाले से कहता है कि हमारे इमाम के पास आ जाओ। तो कहता है कि फिर मैं हजरत के पास गया, और हजरत ने फरमाया कि अजीब तरीका इख्तियार किया है, तुम ये बताओ कि तुम्हारा मसला क्या है। तो कहते हैं कि मैंने मसला बता दिया, और हजरत ने फरमाया कि अपनी बीवी के पास वापिस चले जाओ, तुम्हारी तलाक बातिल है, और इसके अलावा तुम्हारे जिम्मे कोई चीज नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इससे हमें अंदाजा होता है कि हमारे पास कि उस वक्त हालात जो थे वो कितने जाहिर है कि मुश्किल थे। तो इंशाल्लाह अजीज अगले हफ्ते भी हम, जैसा कि मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया, कि हम अपनी गुफ्तगू को जारी और सारी रहे। तो आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव जो है कि इसमें लेफ्ट है, कि जिसमें हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं, और फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तो फिर इंशाल्लाह अजीज, इसके साथ साथ दायरा है कि हम जानते हैं कि 3 जून का जो दिन है वो 1989 के, जिसमें इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह, वो फरजंद ज़हरा, वो बुत शिकन के, जिनकी विलादत का सॉरी जिनका के दायरा के तारीख वफात है, जिनकी डेथ एनिवर्सरी का दिन है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं हमारे वक्त के, कि जिन्होंने 19वीं सदी में, 21वीं सदी में इनकलाब ला के ये दिखा दिया कि अगर परवरदिगार तो आलम की रिजा के लिए आज भी इकदाम उठाए जाएं, और उन रास्तों को अपनाया जाए, आइमा अलैहिस्सलाम की फिक्र को लेकर चले, तो हम दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं, हम इनकलाब को बर्पा कर सकते हैं। उन्होंने यूरोप में, उन्होंने फ्रांस में रहकर भी दिखा दिया, जिला वतनी के दौर में भी, कि आप दुनिया के किसी भी गोशे में रहें, आप इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल पैरा हो सकते हैं। तो हम इमाम खुमैनी अलैहि रहमा के जहाँ शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इनकलाब इस्लामी ला के दिखाया,
اور کس طرح سے ایران اس وقت بھی کہ جس کے اوپر سینکشنز ہیں، جس کے اوپر تمام دائرے کے جتنے بھی اس وقت کے غاصب حکمران ہیں، شیطان ہیں جتنے بھی، وہ ہر طرح سے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں لیکن وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا انقلاب لے کر آنا وہ امام خمینی علیہ رحمہ کی کاوشوں سے، اور تو ان کی روح کو بھی ہم ایک ہدیہ کریں گے یہاں سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھ کر اور 3 بار سورہ اخلاص، اور میں اپنے تمام ویور سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور امام خمینی علیہ رحمہ کے لیے بھی ایک سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو اصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور پروردگار دو عالم اس انقلاب اسلامی کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور نور سے متصل فرمائے، اور ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے حقیقی منتظرین، حقیقی پیروکار، حقیقی جو ہے وہ ساتھیوں میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآل محمد، بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا، خدا حافظ۔